I welcome all of you to this session of Mr. Bhushan Limaye. Our guest speaker for today is Mr. Bhushan Limaye, a practicing chartered accountant for more than 3 decades. He is an expert in advising his clients on tax planning, wealth creation, wealth protection and risk management. An individual of a multifaceted personality. He has been managing finances of more than 1,000 families, which include many big names in the field of media, arts, culture, sports, and even medicine. A few of our doctors are also his clients. In mutual fund, he is handling more than 170 crores of these clients, besides the different kinds of insurance portfolios and policies. He is a chairman club member of LIC. He has his own sprawling office at Shahari Park, where he is assisted by 16 staff members, including 1 chartered accountant. He is one of the most sought speakers on the subject of financial planning, not only in India, but also abroad. He shared his thoughts as a guest speaker at Orlando, USA, and at the prestigious MDRT convention at Singapore, to mention a few. He loves sharing his success stories and the knowledge gathered during his decades of practice. We are fortunate to have him with us today afternoon. Before I invite him, let me take you to a virtual tour of his office. This is his office at Dada Shahari Park. May I now request Bhushan sir to please come over. We eagerly look forward to hearing from you in detail on the subject, which has given us opportunity to enhance our knowledge and get an insight of the nuances so that we can plan our futures, finances judicially and not by emotions or free advice available on WhatsApp. So sir, it's all yours. Please take it over. Before I start, a big thank you to Abhilash Dubey and the institute over here for giving me an opportunity. मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, कुछ भी बेचने के लिए मैं नहीं आया हूँ, क्योंकि हमेशा ऐसे रहता है, कभी भी कोई बात करने के लिए आता है तो उनके दिमाग में कुछ रहता है. I am fortunate to have around 45-50 people over here, and my passion is to educate people, not that you are not educated. मेरे इस फील्ड में काफ़ी तजुर्बा है. 30 साल से मैं बड़े बड़े ट्रेनर से ट्रेनिंग ले रहा हूँ कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है. प्लस बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हेल्प्स मी अ लॉट इन एडवाइजिंग पीपल रिगार्डिंग टैक्सेशन ऑल्सो. सो आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ 1.5 hours to explain my thoughts on investment, and then we'll have maybe around half an hour for question answer. अगर आपके कोई क्वेश्चन रहते हैं तो आप पूछ सकते हो सके उतना मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा. You have come here in hospital, so I consider myself as a financial doctor. See, any time आपको कहीं पे भी अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो जो भी आपको एडवाइस करता है वो प्रोफेशनल होना जरूरी है. आप मानते हैं प्रोफेशनल होना? अगर एडवाइजर आपका है तो प्रोफेशनल के पास ही एडवाइस लेंगे ना. अगर प्रोफेशनल नहीं है तो एडवाइस में मजा नहीं आएगा. तो आई थिंक दैट ओवर अ पीरियड आई बिकम अ फाइनेंशियल डॉक्टर, क्योंकि अगर
डॉक्टर की बेसिक क्वालिटीज क्या होती है, तो पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है। यहाँ पे कोई डॉक्टर है यहाँ पे जो होना चाहते हैं, देखिए डॉक्टर है, बाकी सब असिस्ट कर रहे हैं डॉक्टर को, या यू आर आल्सो देयर। सो डॉक्टर की बेसिक प्रोफेशनल की एक क्वालिटी क्या रहती है कि हाईली एजुकेटेड। सो आई कंसिडर माई सेल्फ एजुकेटेड बिकॉज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो टैक्स के बारे में काफ़ी जानकारी है मेरी। और मैं दूसरा एक जो रहता है डॉक्टर के लिए कि प्रैक्टिस चालू करने के बाद या कहीं पे भी जॉब करते हैं तो एक टाइम डॉक्टर की डिग्री मिल गई क्या उनकी पढ़ाई खत्म होती है? इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस, कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ता है। जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है या जो भी नए मेडिसिन आते हैं आपको हर एक चीज़ की जानकारी लेनी पड़ती है। सो इट्स अ कंटिन्यूस एजुकेशन। तो सेम थिंग इज विथ मी। जो भी टैक्स में नए चेंजेस आते हैं या इन्वेस्टमेंट में चेंजेस आते हैं वो मैं उसकी जानकारी रखता हूँ। काफ़ी बड़े ट्रेनर से मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, इसलिए मुझे वो जानकारी है। I would like to discuss something common between being healthy and being wealthy. यहाँ पे कितने लोग हैं जो वेल्दी बनना चाहते हैं? ऑलरेडी वेल्दी रहेंगे शायद, लेकिन वेल्दी बनना चाहते हैं। तो सिर्फ 4 या 5 है, बाकी को वेल्दी नहीं बनना। तो वेल्थ के साथ में अगर वेल्दी है लेकिन हेल्थ अच्छी नहीं है, क्या वो कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा? सो एवरीबडी वांट्स टू बी हेल्दी एंड वेल्दी ऑल्सो। मैंने देखा है कि हेल्दी रहने के लिए जो भी हैबिट्स है ना, वो सेम हैबिट्स इफ यू इनकलकेट इनटू अ इन्वेस्टमेंट पैटर्न इट विल हेल्प यू बिकम वेल्दी ऑल्सो। तो ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, 30 साल का तजुर्बा है, ये मैं शेयर करना चाहता हूँ। If you want to be healthy, you have to start caring about your health from a young age. ऐसे नहीं बोल सकते कि चलो मैं 35-40 साल तक मजा मस्ती करूंगा, दारू पीऊंगा, पान परा खाऊंगा और बाद में सुधर जाऊंगा। तो जो हानि होनी है बॉडी की वो तो हो जाएगी, करेक्ट है? तो यू हैव टू स्टार्ट केयरिंग फॉर बीइंग हेल्दी फ्रॉम अ वेरी यंग एज। सेम वे इफ यू वांट टू बी वेल्दी यू हैव टू स्टार्ट सेविंग फ्रॉम योर वेरी यंग एज। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बताता हूँ, जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी रहती है तो हमको एक सीए के पास इंटर्नशिप करनी पड़ती है, कॉलेज है आर्टिकलशिप। मेरा आर्टिकलशिप मैंने किया 1979 में। मैं 1979 में आर्टिकल्स करता था, पूरा दिन काम करना पड़ता था। मॉर्निंग कॉलेज रहता था, 7 to 10 was the college, 10:30 I used to go to the चार्टर्ड अकाउंटेंट। 10:30 से 5:30-6 तक काम करना पड़ता था, रिगरसली काम करना पड़ता था। और स्टाइपेंड हमको मिलता था 60 रुपीज़। फर्स्ट मंथ स्टाइपेंड पहले साल में 60, सेकेंड मंथ में 90, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में 150। अभी 60 और ऑल्सो बिग अमाउंट, क्योंकि जब कॉलेज में था तभी पिताजी मुझे 40 रुपये पॉकेट मनी देते थे और उसमें अच्छा गुजर हो जाता। 40 रुपये में शायद 2 घंटे भी नहीं निकले हमने, बट 40 रुपीज़ वॉज सफिशिएंट। तो जैसे पहला महीना मेरा खत्म हो गया तो मैं खुश था कि 40 के साथ में मुझे और 60 मिलने वाले, तो 150% आई। मैंने बहुत सारे प्लान बना के रखे थे दोस्तों के साथ में। एक टीचर हुआ करता था 1979-80 में, मुकद्दर का सिकंदर। एक टाइम देखा था, वो वापस देखेंगे। क्रिकेट मैच देखने के लिए जाएंगे, कुछ प्रोग्राम बनाएंगे महाबलेश्वर माथेरान जाने के लिए। लेकिन जैसे एक महीना हो गया, मेरे जो बॉस थे उन्होंने मुझे बोला भूषण नीचे और ऑफिस ऑन द 3rd फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे बैंक ऑफ इंडिया है, वहाँ पे जाओ, वहाँ से एक सेविंग्स अकाउंट का फॉर्म लेके आओ और एक रिकरिंग डिपॉजिट का फॉर्म लेके आओ। मैंने कुछ समझा नहीं, मैं सेविंग्स का लेके आया। उन्होंने मुझे 60 रुपीज़ का चेक दे दिया। मुझे बोला भूषण 60 में से कम तुझे 30 रुपीज़ का एक रिकरिंग डिपॉजिट खोलना है, दैट ऑल्सो फॉर 5 ईयर्स। मैं तभी बहुत रिजेक्टेड हो गया, क्योंकि काफ़ी सारे जो प्लान्स थे मेरे फेल हो गए। तो कंपलसरी सेविंग मुझे करना पड़ा, क्योंकि मुझे ऑप्शन नहीं था। बॉस ने बताया था, वो भी उन्होंने बताया कि 5 साल के लिए तुमको रिकरिंग डिपॉजिट खोलना है। तो पहला जो था ये बात नहीं सीखा मैंने, लेकिन बिकॉज ऑफ माई बॉस आई स्टार्टेड सेविंग फ्रॉम अ वेरी यंग एज। फ्रॉम द एज ऑफ 19 आई स्टार्टेड सेविंग 30 रुपीज़ पर मंथ। हुआ ऐसे 5 साल के बाद जब वो मैच्योर हो गए रिकरिंग डिपॉजिट, तभी मैं सीए बन चुका था। और मेरा पहला जॉब वॉज इन होटल नटराज। अभी जो इंटर कॉन्टिनेंटल है चर्चगेट में आप जाओगे तो इंटर कॉन्टिनेंटल होटल है, वहाँ पे होटल नटराज में जॉब था मेरा।
So first job my salary was 3,500. चार्टर्ड अकाउंटेंट आज सैलरी भाई फिगर मिलती है तभी 3,500 दे, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि 3,500 जब मेरी सैलरी मिली ना तो मुझे लगा कि बॉम्बे का सबसे रईस आदमी मैं हूँ, क्योंकि 3,500 तो वेरी बिग अमाउंट है। 3,500 और पेरेंट्स के साथ रहता था, एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ, सो 3,500 वाज अ वेरी बिग अमाउंट। और उसी महीने में जो 30 रुपये का रिकरिंग डिपॉजिट जो मैंने चालू किया था ना वो मैच्योर हो गया, 5 साल हो गए, और उसका इफ आई एम नॉट रॉन्ग समवेयर अराउंड 3,850 ऐसा कुछ मैच्योरिटी मिला था। दैट वाज अ बिग अमाउंट। मेरे दिमाग में ये आ गया कि अगर वेल्थी बनना है तो जरूरी नहीं कि बड़ा सेविंग करना है, छोटे अमाउंट से भी चालू करना, लेकिन कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म में करना है। तो दैट गेव मी अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग सेविंग। सेविंग ऐसी चीज है ना लोग एंजॉय नहीं करते। यहाँ पे अगर कोई आता है आईफोन बेचने के लिए, कुछ आईफोन्स के, तो फटाफट लोग आईफोन खरीदी करेंगे, बिकॉज यू गेट दैट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज अगर 1.25 लाख देते हैं तो वो चीज आपको दिखेगी 1,25,000 में, लेकिन सेविंग जो कर रहे हैं आप फ्यूचर गोल्स के लिए कर रहे हैं। व्हाट आई मीन इज, अभी आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं मेजर अराउंड 40-45 है, कई सीनियर है, तो यू हैव टू हैव योर फाइनेंशियल गोल्स फर्स्ट। आपको बैठ के आपके फाइनेंशियल गोल डिसाइड करने चाहिए कि आपको किसके लिए सेविंग करनी है। प्रोडक्ट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, आपके गोल्स इंपॉर्टेंट है। वो गोल्स आपको लिखने चाहिए, आपको कब पैसे चाहिए, कितने चाहिए और कौन से पर्पस के लिए चाहिए। ये 3 चीजें अगर आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स को बताते हो तो ही कैन गिव योर रोड मैप। मैं ये भी नहीं कहता जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर बताता है वो आंख बंद करके आपको फॉलो करना है। यू कैन टेक इट एज अ सेकंड ओपिनियन। तो स्टार्टिंग सेविंग फ्रॉम अ यंग एज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, अगर आपको हेल्दी रहना है, डू यू एग्री कंट्रोल्ड ईटिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर आप शादी में जाते हो, स्पेशली इफ यू गो टू अ मारवाड़ी शादी, 70-80 डिश रहेंगे, करेक्ट है, तो सभी डिश हम लोग खा भी नहीं सकते। तो कंट्रोल्ड ईटिंग करोगे अपने पेट के लिए भी अच्छा है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। सेम वे कंट्रोल स्पेंडिंग इज इंपॉर्टेंट। जनरली मैं जब क्लाइंट से मिलता हूँ या लोगों से बात करता हूँ और सब एक्सप्लेन करने के बाद एक कॉमन जो ऑब्जेक्शन आता है ना, भूषण आप जो बोल रहे हैं सही है, 10,000 5,000 सेविंग करना है, लेकिन सर पैसे ही नहीं है। वो हिसाब दिखाते हैं मुझे, मैं उनको बोलता हूँ कि आपका फॉर्मूला क्या है ना सेविंग का, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग। तो सर 1 लाख का इनकम आता है, 35-40,000 घर का EMI, 10,000 गाड़ी का EMI, स्कूल फीस, घर का खर्चा, ये वो करके सर 1 लाख खत्म। तो मैं उनको एक ही बोलता हूँ, थोड़ा फॉर्मूला में अगर चेंज करोगे ना, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस कर सकते हैं। तो ₹1,00,000 का पगार है, मैं बोलता हूँ चलो ₹1,000 का करो ना। अगर लाख का 99,000 हो जाता है आपका सैलरी, आपको क्या लगता है पूरा दुनिया ऊपर नीचे हो जाएगी आपकी? यू विल बी एबल टू मैनेज इन 99,000? होगा कि नहीं होगा? 99 में होगा ना। तो ₹1,000 सेविंग चालू कर दो, क्या होता है ₹1,00,000 में भी मैनेज नहीं होता है। तो लाख का नेक्स्ट ईयर आपको इंक्रीमेंट मिलता है और 15,000 बढ़ता है आपका, तो वापस आपको मिलने के बाद आप मुझे 15 दिन नहीं भागा सकता है, 1,15,000 पूरा करता है माल। होगा कि नहीं होगा ऐसा? पीएफ जो डिडक्ट होता है सैलरी में से, यहाँ पे सबके सैलरी में से पीएफ होता है डिडक्ट, पीएफ गेट डिडक्टेड ना। अगर पीएफ आपको मैनेजमेंट बोलती है कल से हम लोग पीएफ डिडक्ट नहीं करेंगे, आपको पूरा सैलरी दे देंगे, नेक्स्ट डे जाके आप पीएफ आपका खुद भर दो, कितने लोग भरेंगे पीएफ अकाउंट में? आपको क्या लगता है भरेंगे कोई पीएफ? खर्चा हो जाएगा। ये पीएफ आपका कंपलसरी सेविंग हो रहा है। पीएफ क्या हो रहा है, ₹1,00,000 आपका सैलरी है, 8,000 सपोज मैं 8% पकड़ता हूँ, 8,000 पीएफ डिडक्ट होते हैं, बाकी के 92 आपको मिलते हैं, 92 में आप आपका महीना गुजारा कर लेते हो। लेकिन वही अगर पीएफ नहीं डिडक्ट करेंगे, आपको ₹1,00,000 देंगे, आपको क्या लगता है 8,000 सेविंग होने वाला है आपका? तो करेंगे सेविंग? आप सेविंग नहीं करेंगे तो जब आप रिटायर हो रहे हो तभी जो 75 लाख 1 करोड़ जो भी आपको पीएफ मिलेगा वो आपको मिलने वाला नहीं। तो कंपलसरी सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंट्रोल स्पेंडिंग। कंट्रोल स्पेंडिंग आप करोगे तो ऑटोमेटिकली सेविंग होने वाला है। जनरली मैंने स्पेंडिंग का क्या देखा है, स्पेंडिंग लोग आजकल सोशल मीडिया देख के स्पेंडिंग बहुत होता है। तो सोशल मीडिया में देखते हैं अरे मेरा दोस्त
वेकेशन जाके आया, स्विट्जरलैंड जाके आया, तो मेरी भी इच्छा हो जाती कि इच्छा होनी बुरी नहीं है। तो हमको क्या कंपेयर करना है, वो जो दोस्त मेरा स्विट्जरलैंड गया उसका इनकम क्या था, मेरा इनकम क्या है। अगर उसका इनकम ज़्यादा है मेरे से तो फर्स्ट आई हैव टू इंक्रीज माई इनकम एंड देन गो टू स्विट्जरलैंड। मोबाइल फोन में I can afford to take a mobile phone which is costing 1,50,000, 1,80,000 also. But for the last several years I have been using a mobile phone. The cost में doesn't go beyond 40,000. Because I consider mobile phone जो है ना वो depreciating asset है। आज मैं 1.5 लाख का लेता हूँ, कल उसका वैल्यू 1 लाख हो जाता है। जो 1.5 लाख का मोबाइल काम करता है वही 40,000 का मोबाइल काम करता है। So you have to think before you spend. Thank you. Thank you, Amit. We appreciate. Yeah. And I hope everybody has enriched himself or herself on the subject matter of investment planning, future planning, tax savings, and all other aspects taken together. Before I end the session, may I request Yogesh sir to hand over it as a token of our love and appreciation, and looking forward that this small sapling, just like the investments all around, will grow big. just like sapling grows big, our investments also grow big, sir. It will grow big only if I water it every day. Yes. Consistent